Three guys building a brand for women wellness. जब यूजर कंफ्यूज होगा तब तक वो फिटनेस ब्रांड्स पैसा कमाएंगे. Please break down PCOS and PCOD for us. लाइफ टाइम डिसऑर्डर है, लाइफ टाइम ये चलेगा तो कैसे ठीक तो हो ही नहीं सकता. What is the biggest misconception that people have about women wellness? एक ही चीज उनको सुनने को मिलती है कि यार तू कम खाया कर. You have even reached Shark Tank, as I understand. How did that journey come about? शार्क टैंक का एपिसोड हमारा 1.5 आवर का था. टेलीकास्ट होता है सिर्फ 10 मिनट का. वहाँ पे जो रियलिटी में होता है वो कभी दिखाया ही नहीं जाता. Any interesting story that you can share with us? मैंने उनको 25,000 रुपीज के पैसे पे करे अपने हाथ के कंगन बेच के, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मैं ओवरवेट होती जा रही हूँ. If you've ever tried fixing your health with the diet plan that you found online, tried it for a week and then given up, you're not alone. For women dealing with PCOS or PCOD, it's even harder. There's advice everywhere and only a little that actually works long term. And that's where HobFit comes in, a platform specifically designed for women, combining fitness, nutrition, and accountability in one place. And to dive deeper into this, I'm being joined by the co-founder Gaurav Dua, who will talk more about the apps, the challenges, and the bigger question. Can an app really fix something as complex as hormonal health? Well, we'll find out. Welcome to the podcast, sir. Thank you so much for inviting me to the podcast. Well, we'll start with talking about the brand. What was that exact moment when you thought of women wellness? Because as I understand, you are 3 men who have started behind this big brand, HobFit. Right. So basically, women think that it's a weight problem, but in actual, it's a hormone problem. And even the fitness industry does not understand this thing. And most of the other people, like men in their family, also does not understand this. And the moment when it came to our mind that we need to do something out of it is back in 2024. Although we started our company back in 2020, but that time our company motto was to help people pursue their hobbies. That's why we kept a name Hobbit. That means hobbies and just do it. And that time we were having 5 major hobby categories, and we kept fitness as one of its stream. Although fitness is not an hobby, but it was very close to my heart, so we thought to keep fitness as one of its stream. But we were running that platform for next 3.5 years. We saw one thing, that in our platform most of the people were pursuing fitness in the mainstream, and most of them were women itself. And मेरी एक आदत होती थी कि मैं हमेशा अपने कस्टमर से ना बात करता था, उनका फीडबैक जानता था कि आप क्यों ये ले रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या है जो आपको इतना मोटिवेट कर रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से सिर्फ फिटनेस परचेज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ अदर हॉबीज़. तो वहाँ पे मुझे समझ में आया, जब मैंने एक वुमेन से बात करी, उन्होंने कहा कि यार मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे साथ नहीं रह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरी फिजिक ख़राब हो रही है. एंड इन एक्चुअल सिर्फ ये वेट लॉस इशू नहीं है, ये हार्मोनल इशू है. तो मैंने और समझने की कोशिश करा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि शी वॉज हैविंग PCOS, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा था, उनको एक्ने हो रहे थे, उनको पिगमेंटेशन हो रहा था, और सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करने से, सिर्फ वर्कआउट फॉलो करने से वो कुछ भी ठीक भी नहीं हो रहा था. बट उनकी फैमिली मेम्बर्स को लग रहा था क्योंकि ये ज़्यादा खा रही हैं, ये अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ दिस इज़ द ओनली रीज़न. तब हमें समझ में आया दिस इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वुमेन आर फेसिंग दीज डेज, एंड नॉट इवन अ सिंगल fitness player is dealing with these things, who are helping women to understand their hormonal issues and reverse their hormonal issues. तब हमें लगा कि यार हमारे मेन क्लाइंट बेस भी वुमेन है, हमारे पास मेजर क्लाइंट बेस फिटनेस के लिए ही आ रहे हैं, और उनका जब मेन चैलेंज ही हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो हमें सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए ना. सो दैट वाज अ पॉइंट जब हमें लगा कि नो, हॉबिट से ज़्यादा बड़ा विजन हमारे लिए हॉब फिट है. तो हॉब फिट का मीनिंग है हार्मोनल बैलेंस एंड फिटनेस. सो दैट टाइम वॉज अराउंड 2024, जब हमें लगा कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर वुमेन्स हार्मोनल हेल्थ, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा है. इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प वुमेन अंडरस्टैंड देयर हार्मोनल disorder and help them to reverse it as well. For a layman to understand, can you please break down PCOS and PCOD for us, or what kind of issues do actually women go through in day-to-day life that maybe brands or maybe apps like these fitness have failed to tackle? जितने भी फिटनेस प्लेटफॉर्म या फिटनेस एप्स होती हैं या फिटनेस प्रोडक्ट होते हैं, अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या चलता है कि जब जब यूज़र कंफ्यूज होगा तब तक वो फिटनेस ब्रांड्स पैसा कमाएंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूज़र को उसका
कोर इशू नहीं पता कि वो इशू एक्चुअल में है क्या। जब इशू नहीं पता तो 10 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, हर प्रोडक्ट कुछ अलग बोलता है कि हम इसकी वजह से आपका वेट लॉस कराएंगे, इसकी वजह से आपका इंसुलिन ठीक कराएंगे, तो यूजर को लगता है यार दिस इज द राइट थिंग। या कोई कहता है कि इसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, इसकी वजह से आपका एक्ने कम हो जाएगा। तो यूजर्स आर परचेजिंग 10 डिफरेंट प्रोडक्ट, जो कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उनका रूट कॉज क्या है। क्योंकि अगर रूट कॉज सॉल्व हो जाए तो उनकी ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ईजी हो सकती है और ऑटोमेटिकली बहुत सिंप्लीफाइड हो सकता है। बट पीसीओएस और पीसीओडी तो एक लाइफ लॉन्ग वो है, वो ऐसा तो नहीं है कि अगर आज आपने कोई दवाई दे दी तो वो ठीक हो जाएगा। वो तो एक विमेन लाइफ लॉन्ग ही डील करती रहती है। इट्स नॉट लाइक माई पीरियड्स आर फ्लक्चुएटिंग दिस मंथ एंड इफ आई फॉलो अ डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन इट विल बी बेटर नेक्स्ट मंथ। चलो ठीक है, तो हम ना पहले इन दोनों को बाइफरकेट कर देते हैं, क्योंकि लोग ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी इज़ अ हार्मोनल इशू, जिसके अंदर हमारी ओवरीज जो है एग्स को मैच्योर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो उससे क्या होता है, सिस्ट हो जाता है। सिस्ट की वजह से कभी कभी साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट पीसीओएस, दैट्स अ बिगर इशू, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इशू नहीं है, दैट्स अ मेटाबॉलिक इशू एज वेल, जिसके अंदर वुमेन की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। जब वो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग होता है कि वुमेन की बॉडी शुगर को कैसे बॉडी के अंदर यूज करना है वो समझ ही नहीं पा रही। इस वजह से उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पीरियड साइकिल सिर्फ इरेगुलर तो होती ही होती है, कभी कभी वो बंद भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो पीसीओएस इज अ बिगर इशू, पीसीओडी इज अ स्मॉलर इशू। अगर मैं सिर्फ पीसीओडी की बात करूं तो पीसीओडी कैन बी इजिली मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइफस्टाइल चेंजेस, जहां पे आपको कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं, तो 80 to 90% केसेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि इसको लाइफ लॉन्ग हम चलाते ही जाएंगे। तो इसके लिए मेरा एक आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टडीज एज वेल। तो जैसे आपने अभी बोला ना कि ये तो लाइफस्टाइल लाइफ टाइम डिसऑर्डर है, लाइफ टाइम ये चलेगा, तो कैसे ठीक तो हो ही नहीं सकता। तो सारी वुमेन ने ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, हाँ यार ये तो लाइफस्टाइल इशू है, तो ठीक हो ही नहीं सकता। एंड व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से फ्रॉम आवर माउथ, आवर ब्रेन एक्चुअली लिसन टू दैट। तो देयर इज अ स्टडी जहाँ पर 2002 की स्टडी है बैक इन, जहाँ पे 180 पेशेंट्स एडमिट हुए थे एक हॉस्पिटल के अंदर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, तो मैंने सोचा इससे आपको रिलेट करके बता पाऊँ कि 180 पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर, उनकी नी की सर्जरी थी, क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने क्या करा, उनकी नी की सर्जरी के लिए सबसे पहले तो उनको एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद उनको उनकी नी के ऊपर 3 कट्स लगा दिए गए। जब 3 कट्स लगा दिए गए तो एक बहुत शॉकिंग चीज हुई कि डॉक्टर ने 50% पेशेंट्स की सर्जरी कंप्लीट ही नहीं करी। 50% पेशेंट की नी के ऊपर उन्होंने सॉल्ट वाटर को स्प्रे करा और उसके वाउंड को बंद करके उनको भेज दिया, ताकि, और सॉल्ट वाटर इसलिए स्प्रे करा ताकि उनको भी ऐसा फील हो कि हाँ सर्जरी पूरी हो गई है। 2 साल के बाद शॉकिंग न्यूज सामने आई कि जिन लोगों की एक्चुअल में सर्जरी नहीं हुई थी, वो लोग माउंटेन्स क्लाइम कर पा रहे थे, वो लोग स्टेयर्स चढ़ पा रहे थे, because they had the idea कि हमारी सर्जरी हुई है। क्योंकि इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके माइंड ने ये बिलीव कर लिया था कि यार वो ठीक हो रहे हैं, तो उनकी बॉडी ने फॉलो करा। सो दैट इज व्हाई आवर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी बॉडी उसको फॉलो करती है। तो अगर वुमेन को हमेशा लोग कहते हैं कि यार आप तो ठीक ही नहीं हो पाओगे, आप तो पेट कम ही नहीं कर सकते, आप डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे, that words itself brings the barrier in their mind, और वो बैरियर ही उनको रोकता है। और हमारे अंदर क्या होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है एक, जिसके अंदर हम जो भी सुनते हैं ना, हमारी बॉडी उसको एक्चुअल में सही प्रूफ करने के लिए लग जाती है। अगर मैंने कहा कि यार मैं आजकल बहुत टायर्ड रहने लगा हूँ, तो डेली जब मैं सुबह उठूंगा ना, डेली जब मेरा डे एंड हो रहा होगा ना, मेरा माइंड मुझे हमेशा सिर्फ वही चीज़ें रिकॉल करवाएगा कि जब मैं रियलिटी में टायर्ड था, और वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देगा जब मैं एक्चुअल में एक्टिव था। क्योंकि मेरा माइंड मेरे उस थॉट प्रोसेस को, उस एक लाइन को सही प्रूफ कराना चाह रहा था। तो हमेशा हमें क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सो पीसीओडी कैन बी रिवर्स, कैन बी मैनेज विद इन 6 months ऑफ टाइम। और अगर मैं पीसीओएस की बात करूं, तो अगर उसमें हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को सबसे पहले हम फिगर आउट करें, उसको करेक्ट करें, तो वेट लॉस इशू भी करेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो एक्ने हैं, जो पिगमेंटेशन और जो बाकी इश्यूज उसके साथ आ रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, हाउ डू यू डील विद दैट? आई अंडरस्टैंड दैट अ डाइट एंड अ न्यूट्रिशन प्लान एंड मे बी कंसल्टेशन विद द डॉक्टर कैन हेल्प यू मैनेज योर वेट गेन और मैनेज योर acne problem
etc. that you've talked about, but how do you deal with the genetic disorder? सो देखो यार, इसके अंदर भी ना ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है और सिर्फ लाइफस्टाइल भी नहीं है, इसके अंदर 4 मेजर कॉजेज होते हैं इसको होने के। वन इज ऑब्वियसली लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल आपका खराब है, तो अगर आपको पीसीओडी है और आप लंबे टाइम तक अपना लाइफस्टाइल खराब ही रख रहे हो, आप उसको इंप्रूव नहीं करें, दैट कन्वर्ट्स इनटू पीसीओएस एज वेल। दैट इज अ वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, जैसे कि आपने बताया, इट्स अ जेनेटिक थिंग एज वेल। काफ़ी लोगों में जेनेटिकली भी होता है। उसको भी करेक्ट करने के लिए अगर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम उसको एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर लोगे, तो जो उसके रिपरकशंस आपकी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे, और अगर वो कम भी हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। थर्ड केस इज एनवायरमेंट एज वेल। अभी जो हम खाना खाते हैं केमिकल्स वाला, प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हार्मोनल इश्यूज होते हैं। एंड द फोर्थ केस इज हार्मोनल ट्रिगर्स। जो हम प्रेगनेंसी पिल्स कंज्यूम करती हैं वुमेन, उसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट जेनेटिक, इट्स नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर जेनेटिकल केस भी है, तो भी अगर आप उसको लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेज कर रहे हो और आप उसके कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, दैट इज इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो भी काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, इफ नॉट 100% रिवर्स्ड। So, as you said, PCOS is a deeply medical term. How do you avoid oversimplifying into diet plus workout problem? No, it cannot be oversimplified with the diet and workout plan. And yes, we totally understand that we are 3 men solving this big issue. But I'll tell you one thing, that we are an operator. हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, चाहे वो रिसर्च टीम हो, चाहे वो ऑपरेशन टीम हो, चाहे वो हेल्थ कोचेस की टीम हो, या वो डाइटिशियंस की टीम हो, या कम्युनिटी की टीम भी हो, 90% ऑफ द पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन आर वुमेन। तो वी आर जस्ट एन ऑपरेटर। रेस्ट हमें क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट आर द रियल चैलेंजेस दैट वुमेन फेस, इज बीइंग डिसाइडेड बाय आवर टीम इटसेल्फ। हर चीज के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है। तो ऐसा नहीं कि हम खुद नहीं समझ सकते तो हम हेल्प नहीं कर सकते। वी आर एन ऑपरेटर। But sir, as I understand, there's a lot of competition out there. There's Healthify, there's CultFit, who's offering the same kind of, if not directly linked with PCOS, at least they are targeting the fitness and the nutrition industry. So how do you get at par with that competition, or how do you make sure that they don't copy you in future? ओके, तो मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। फिटनेस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, सब या तो कोई वर्कआउट सेल करता है, या तो कोई डाइट प्लान सेल करता है। बट हॉबिट क्या एक्चुअल में सेल करता है? वी सेल आउटकम्स। वी डू नॉट सेल जस्ट वर्कआउट, वी डू नॉट सेल जस्ट डाइट प्लान। तो हॉफिट के अंदर वी हैव बिल्ड एन इकोसिस्टम, जिसके अंदर वी जस्ट डू नॉट सेल द we don't just sell the programs to the users, but instead of that, we invite users to be the part of the community. And what does that community do? The community helps users to track their menstrual cycles, to log in their symptoms over there, to understand their body first. And along with that, we have generated a AI-powered test along with gynecologists, जो कि 20 tappable questions का test है, that is PCOS assessment test. क्योंकि हमने देखा कि Tier 2, Tier 3 cities में अभी भी talking about periods, talking about cycles, talking about पेन इज स्टिल अ टैबू। लोग अपनी वुमेन्स अपनी फैमिली तक में भी बात करना प्रेफर नहीं करती। तो ब्लड टेस्ट कराना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए उसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म में एक टेस्ट लॉन्च करा, जिसमें वुमेन एनरोल इट, और उसमें जैसे टैप करती हैं और पिक्चोरियल फॉर्मेट में उनको दिखता है कि हाउ इज द डिस्चार्ज, हाउ लॉन्ग द साइकिल लेंथ इज। ऐसे 20 सवाल आते हैं जिनको सिर्फ उनको वुमेन को टैप करना होता है कि उनकी बॉडी में एक्चुअल क्या चल रहा है, और वो टेस्ट उनको एक ब्रॉड डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड दे देता है कि आपकी बॉडी में कितने % चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस है। द चांसेस आर हाई, द चांसेस आर मीडियम, और द चांसेस आर लो। तो वो करने के बाद इफ वुमेन थिंक्स कि यस दे वांट टू रिवर्स इट नाउ, दे वांट टू टेक एन एक्शन ऑन इट नाउ, देन दे बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस। उस कंसल्टेशन कॉल के थ्रू हमारे हेल्थ कोचेस, जो कि अगेन मैंने पहले बताया कि हमारे सारे हेल्थ कोचेस वुमेन है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रियल इश्यूज। उसके बाद वी ट्राई टू हेल्प देम विद इन अ होलिस्टिक वे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डाइट प्लान सेल कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्कआउट सेल कर रहे हैं। हमने एक इकोसिस्टम बनाया है, और उस इकोसिस्टम के पार्ट के थ्रू हम यूजर्स की मदद करते हैं उनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स को रिवर्स करने के लिए। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिम्टम ट्रैकर, क्योंकि अगर आप कोई सिम्टम्स को ट्रैक ही नहीं कर रहे तो आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? But at the same time, if see, I didn't know about this app before, and I used to use an app called Flow to track my period cycle, to get in touch with what kind of symptoms I'm facing. Are my periods getting delayed? How is my menstruation cycle going? And if I need to consult with a doctor, I would rather go for an app like Practo, where I can get free consultation and then maybe pay for it if the issue persists. And so why I understand that your platform maybe brings everything together, that you can track your symptoms and then consult with somebody immediately. There are trusted brands like Practo and Flow. Why would somebody choose HOPFit? अच्छा, चलो मैं आपसे ना एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ कि अगर आपको
एक हफ्ते पहले आपकी स्टमक अपसेट थी, एक हफ्ते बाद आपको फीवर है, उसके एक हफ्ते के बाद आपको हेडेक हो रहा है, आप तीनों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स या फिर अलग अलग लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि आप जब अलग अलग लोगों से कंसल्ट कर रहे हो उसमें आपको बेटर आउटपुट मिलेगा, या अगर आप एक ही बंदे से सारा कुछ कंसल्ट कर रहे हो, एक ही डॉक्टर से सब कुछ कंसल्ट कर रहे हो, जिसको आपकी पास हिस्टोरिकल डेटा के बारे में पता है कि आपको 1 महीने पहले स्टमक अपसेट था, उसके एक हफ्ते बाद जब आपने स्टमक अपसेट की मेडिकेशन खाई तो आपको फीवर हो गया, उसके एक हफ्ते के बाद अब आपका रेगुलर हेडेक होने लग गया है, तो वो आपको बेटर आउटपुट दे पाएगा इंस्टेड ऑफ इफ यू आर गोइंग टू द 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डूइंग कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स डिफरेंटली। आपको क्या लगता है कौन सी जगह पे आपको बेटर आउटपुट मिलेगा? I understand that, but if I'm going to a doctor, can't I just verbally tell him कि okay, this happened with me last month, उसके बाद ये खाया and then उस दवाई से मुझे ये सिम्टम हुआ, फिर अभी ये हुआ। चलो देखो, ये तो अभी हमने सिर्फ 1 महीने की बात करी है। अब इस जर्नी को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं 6 महीने के पार्ट में, तो आप खुद भी भूल चुके होंगे कि आपने 3 महीने पहले कौन सी मेडिकेशन कंज्यूम करी थी। 3 महीने पहले अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, 3 महीने पहले आपकी साइकिल की लेंथ क्या थी, आपका जो आपके स्टमक में इशू हो रहे थे, चाहे वो डिस्चार्ज से रिलेटेड हो, चाहे वो पेन से रिलेटेड हो, कौन से महीने में कौन सी डेट पे एक्चुअली में क्या हुआ था, वो आपको क्या याद रह सकता है क्या? अगर मैं 6 महीने के फ्रेम में आपसे पूछूं तो ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, वी कैन नॉट लर्न ऑल दीज थिंग्स, और हम इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते, और अगर हम खुद याद नहीं रख पा रहे तो हम आगे कन्वे कैसे करेंगे? सो दैट्स अ चैलेंज कि सामने वाले प्लेटफॉर्म को, सामने वाले डॉक्टर को पूरी आपकी जर्नी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको एक राइट अप्रोच से आंसर कैसे कर पाएगा? दैट वेयर देयर कम्स अ पार्ट ऑफ हॉफिट, जहाँ पे वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या चल रहा है पिछले 6 महीने 1 साल की जर्नी के अंदर, कौन से दिन उनको पेन ज्यादा हुआ, कौन से दिन उनका डिस्चार्ज कैसा आया, कौन से दिन उनको क्या सिम्टम फील हुआ, एंड इवन पर्सनल थिंग्स एज वेल, कि किस दिन उन्होंने पर्सनल लाइफ के अंदर क्या किया जिस वजह से उनको क्या इश्यूज फेस हुए, वो सब जर्नी ट्रैक हो रही है। और उस जर्नी को ट्रैक होने के बाद जब वो कंसल्टेशन कॉल ले रही है तो हमारे हेल्थ कोचेस को उनकी पूरी की पूरी जर्नी पता है, एंड वंस अ यूजर इज कमिंग ऑन बोर्ड विद अस इन अ प्रीमियम प्रोग्राम, जहाँ पे वर्कआउट्स और डाइट का तो बड़ा रोल है ही है, वहां पर भी वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं हम वो भी ट्रैक करते हैं। वो ट्रैक कैसे करते हैं, उसके लिए भी हमने AI टूल बनाया हुआ है, एंड इट्स बीन मैंडेट टू ऑल आवर क्लाइंट्स कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो आपको हर फूड का पिक्चर क्लिक करनी है इन आवर प्लेटफॉर्म, और जैसे यूजर उस फूड की पिक्चर क्लिक करते हैं उसके अंदर हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करते हैं, और वीकली कॉल्स होती है हेल्थ कोचेस के साथ, डाइटिशियंस के साथ, उनको पता होता है कि इस पूरे वीक में इस यूजर की जर्नी में क्या क्या हुआ है। इस पूरे वीक में यूजर ने 4 डेज 5 डेज वर्कआउट्स किया है, एवरेज 250 to 350 कैलोरीज बर्न करी हैं, एवरेज कैलोरीज कंजम्पशन के अंदर इन्होंने 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन भी कंज्यूम करा है, फाइबर भी कंज्यूम करा है, जिंक मैग्नीशियम की टैबलेट्स भी कंज्यूम करी है। स्टिल अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वी नो द कॉज की क्या रूट कॉज हो सकता है कि अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें पूरी की पूरी जर्नी पता होती है यूजर की, उसके हिसाब से हम रूट कॉज को पकड़ के ट्रीट करते हैं। हम कोई रैंडम ट्रीट नहीं करते कि कोई यूजर हमारे पास आया, उसने बोला कि मुझे ये इशू हो रहा है, तो हमने उनको एक मेडिकेशन दे दी, एक पिल दे दी कि आप ये कंज्यूम कर लो, ठीक हो जाएगा। Right. So, what kind of doctors or health physicians are linked to your platform? How do you make sure that they are the right ones? What certifications do you check? So basically, we have 5,000 plus gynecologists in the system. Okay. You'll find out the fastest gynecologist on chat, on call, or on video call on our platform. That's the time is being 15 seconds. In 15 seconds, you can get a gynecologist on chat with you. Okay. That's a most important point of our platform. Next thing is all the doctors, all the gynecologists who are there linked with our platform having at least 5 years of experience. Okay. So no gynecologist is in the platform that is having less than 5 years of experience. Okay. So that's a trust that you can get with the platform itself. That doctor who is having already 5 years of experience, who have already helped a lot of women in reversing their hormonal disorders, is helping you as well. So that's the main And how do you check their background? Since it's an app-based thing, so I am assuming that everything that happens online. So how do you make sure that somebody is not just a facade? So basically, in terms of gynecologist, we have a tie-up with the third-party integration. The same integration that is being done with Practo as well, like the name you were taking before. Checkup will be done by the third party itself, and they will give us a certification that all the doctors are having 5+ years of experience. So that's their operational hecticness, not ours. But we get the top tier of doctors, gynecologists in the platform. In terms of dietitians and health coaches, we only hire those dietitians, those health coaches who are having at least 3 years of experience and who has done certifications, courses, and we check them because those health coaches and dietitians are in office itself. They're not virtual. As you earlier spoke about that AI is at the core of your platform, period tracking, diet plans, etc. So
Is that all template based, or is it actually truly personalized for every customer that you get? सो देखो यार, एआई में भी ना दो टाइप के एआई होते हैं. एक तो हमने सिर्फ एआई का बैकएंड मॉडल लगा के अपने प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया जिससे यूजर उसको यूज कर पा रहे हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द एआई बैकएंड पोर्टल्स जो हैं उसको वो एआई इंडिया की चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते. जैसे कि अगर आप डोसा खा रहे हो तो डोसा की एग्जैक्ट कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पाता. तो हमने अपने एआई को 6 महीने पहले ट्रेन करा, जिसमें हमने उसके अंदर सारे के सारे इंडियन फूड्स को लॉग इन करा विद देयर कैलोरीज, और उसको एक हमने रेफरेंस पॉइंट दिया कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट यू हैव टू यूज फॉर इंडियन फूड. उसके बाद हमने वो एग्जीक्यूट करा अपने यूजर्स के लिए. सो दैट इज व्हाई इट्स मोर ऑफ अ पर्सनलाइज काइंड ऑफ अ थिंग इंडियन यूजर्स के लिए. Since you mentioned that, I want to ask that lot of people nowadays consult ChatGPT and Gemini, basically artificial intelligence to consult. Is it right? या इट्स राइट. Do you think whatever answers they give, they hold any accountability, or it's just a mixture of all the web data that they serve? It's a mixture of web data. That is the very first thing. Second thing is it also depends upon the prompt that you are putting. क्योंकि users, अगर आप और मैं दोनों एक ही सवाल को सर्च कर रहे हैं तो योर आंसर्स, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर एंड आई विल गेट द डिफरेंट आंसर्स, डिपेंडिंग हमारे प्रॉम्प्ट में अगर एक सिंगल वर्ड का भी चेंज है, और फिर हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर मी. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हल्का सा भी प्रॉम्प्ट चेंज हो जाता है ना तो जीपीटी, जेमिनी अलग आंसर देता है, और जब वो आपको हर बार अलग आंसर देगा यू विल नॉट नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू. सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल, अगर वो आपके हेल्थ के बारे में है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट, यू शुड कंसल्ट अ हेल्थ कोचेस फर्स्ट, and you can take a reference from GPT also. I also want to understand ki from your point of view, since you're running a brand and since you're dealing with women wellness, what is the biggest misconception that people have about women wellness? PCOS, PCOD is also under it, under that bracket, in India right now. देखो यार, सबसे बड़ा चैलेंज जो वुमेन फेस करती है ना, हम जो अपनी वुमेन से बात करते हैं, जो हमारी क्लाइंट रह चुके हैं, वुमेन सिर्फ एक ही चीज़ उनको सुनने को मिलती है कि यार तू कम खाया कर, तू वॉक कर ले, सब ठीक हो जाएगा. एंड इन सम केसेस इवन वुमेन को ये बोला जाता है कि तेरी शादी हो जाएगी ना तब सब ठीक हो जाएगा, अभी तेरी शादी नहीं हुई इसलिए कुछ भी ठीक नहीं है. सो दीज आर द कमेंट्स वुमेन हैव टू लिसन. एंड सबसे बुरा तब लगता है व्हेन वुमेन इज डूइंग एवरी बिट ऑफ हर एफर्ट्स, स्टिल शी इज नॉट एबल टू लूज वेट. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि उनको अपनी कोर प्रॉब्लम, कोर इश्यूज पता ही नहीं है कि एक्चुअली उन्हें कहाँ पे हिट करना है. आप इमेजिन करो, ह्यूमन की बॉडी को आप इमेजिन करो इन अ बैलून. बैलून के अंदर अगर हम एक राउंड सर्कल लगा दें विद अ ब्लैक मार्कर, और अगर कोई उनसे बोले कि आपको ये ब्लैक मार्कर के अंदर वेट लॉस करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? आप अगर पिन उस ब्लैक राउंड सर्कल के अंदर मारोगे ना तो पूरा बैलून फट जाएगा. तो यही होता है हमारी बॉडी के साथ. अगर आपको सिर्फ बेली एरिया से वेट लॉस करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टारगेट ओनली बेली एरिया. यू हैव टू रिड्यूस द बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ योर होल बॉडी, तभी आपके बेली एरिया से फैट कम होगा. तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है, ये सारे कमेंट्स हैं जो कि वुमेन को सुनने को मिलते हैं, एंड वुमेन गेट टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग. एंड एक टाइम के बाद उनको भी ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ में सभी खराब चल रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. बट रियलिटी ये है कि उनको अपना कोर इशू नहीं पता. अगर उनको पता लग जाए कि उनको अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी करेक्ट करनी है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ अगर वो करेक्ट करेंगे तो उनका वेट लॉस भी पॉसिबल होगा. और अगर उनके जो सपोर्टिव लोग होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो उनके बॉयफ्रेंड्स हो, चाहे वो उनके हस्बैंड्स हो, अगर वो लोग उन्हें सपोर्ट करें सो इट्स क्वाइट पॉसिबल. बट क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं, उनको ब्रॉडली पता नहीं होता कि इट्स नॉट जस्ट अ वेट इशू, इट्स अ हार्मोन इशू. जिस दिन लोग ये समझना शुरू हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम 40 to 50% मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगी. यू करेक्टली मेंशन कि अगर हमारा इनर सर्कल हमें सपोर्ट करेगा, our immediate family, the person that we are connected with, our friends, so that obviously brings a mental relief. But PCOS and PCOD से डील करने वाली महिलाएं, whatever they deal with physically, there's a lot that happens over here emotionally as well. Being at the center of criticism every now and then, they have to deal with a lot. So how does your platform help them to overcome that kind of an emotional barrier that these women keep facing?
देखो, जैसे मैंने अभी आपको एक रेफरेंस के लिए एक स्टडी बताई थी जहाँ पे हॉस्पिटल में नी की सर्जरी थी, तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट पीसेज हैं जो कि हम अपनी क्लाइंट्स को हर वीकली बेसिस पे शेयर करते हैं। जैसे देयर इज अन अदर स्टडी जो अभी हमने रिसेंटली शेयर करी थी, एंड वी गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम वुमेन दैट वी आर लविंग इट, वी आर नाउ मोटिवेटेड, वी कैन डू इट नाउ, जिससे ना उनका एक माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। देयर वॉज अनदर स्टडी दैट आई वॉन्ट टू डू टेक अ रेफरेंस आउट ऑफ इट। तो देयर वॉज अ मैन इन who wanted to take his own life. So he took a whole box of antidepressant pills. उसको लगा कि यार मुझे अपनी लाइफ लेनी है, एंड जस्ट आफ्टर द मोमेंट ही टुक द ऑल द पिल्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, उसको लगा कि यार मैंने गलत कर दिया। ही कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कॉल करा, डॉक्टर उनके वहाँ पहुँचे। जैसे ही डॉक्टर उनके वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसके वाइटल्स को चेक करा, उनका ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा था, उनकी हार्ट बीट स्पाइक हो रही थी और उनकी बॉडी शट डाउन पोजिशन के ऊपर आ रही थी। तो डॉक्टर को लगा कि यार इन्होंने ऐसा कंज्यूम क्या करा, इनकी बॉडी में कौन सा मेडिकेशन, कौन सा ड्रग अवेलेबल है, लेट्स चेक इट आउट। जब डॉक्टर्स ने ये चेक करा तो उनकी बॉडी में एक्चुअल में कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थी। जो पिल्स उन्होंने कंज्यूम करी थी, दैट वाज अ प्लेसिबो पिल, दैट इज अ शुगर पिल्स एक्चुअली, जिसके अंदर एक्चुअल में कोई भी मेडिकेशन, कोई भी ड्रग नहीं था, बट फिर भी उनकी बॉडी शट डाउन पोजिशन पे आ रही थी। सो दिस इज द रेफरेंस, दीज आर द काइंड ऑफ अ रेफरेंस वी शेयर टू द वुमेन। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके माइंड ने अगेन बिलीव कर लिया था कि उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट का पूरा पिल्स का बॉक्स कंज्यूम कर लिया है, इसलिए उनकी बॉडी इवन शट डाउन पोजिशन पे आ रही है। नाउ इमेजिन अ वुमेन कि अगर आप ये सब चीज़ें लोगों से सुन रहे हो कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी आपकी बात नहीं सुनेगी, आप पतले नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली योर बॉडी, योर माइंड विल रिस्पॉन्ड टू दैट ओनली। तभी हम बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दीज थिंग्स, यू शुड लिसन टू द पॉजिटिव एफर्मेशंस एज वेल। तो ये सब चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि उनका माइंडसेट भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हमेशा मोटिवेटेड रहे। 3 guys building a brand for women wellness. You have even reached Shark Tank, as I understand. How did that journey come about? शार्क टैंक में तो बिल्कुल धमाका ही हो गया था जब उन लोगों ने देखा कि 3 boys are talking about periods, 3 boys are talking about PCOD pieces. Everybody was shocked there. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वहाँ पे हमारा। सबसे एक तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था वहाँ पे नमिता के साथ। सो बिकॉज नमिता इज़ कमिंग फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और फार्मा वाले विल ऑलवेज सपोर्ट medications और लाइफ स्टाइल चेंजेस, दैट वी अंडरस्टैंड दैट। तो उनके वहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि यार medications are most important. We said we are never against of medication. We are just saying that lifestyle is as important as medication as well. अगर आप medication पे भी हो, इंसुलिन रेसिस्टेंस को आप कंट्रोल कर रहे हो medication के थ्रू, तो अगर आप साथ में lifestyle changes करोगे तो it's a 1 + 1 11 change that you will see in your body, not just 2 change that you will see in your body. But वो फिर भी बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए थे। No, pharma is much important in PCOD pieces. Medication is most important thing. But ये मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप PCOD PCOS वुमन हो, अगर आप कोई भी मेडिकेशन भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि मेडिकेशन कैन सप्रेस योर सिम्टम्स। वो रिवर्स नहीं करेगी, वो सिर्फ सप्रेस करेगी सिम्टम्स को फॉर अ टाइम बीइंग। जैसे ही आप उस मेडिकेशन को ड्रॉप करोगे, योर सिम्टम्स विल अगेन कम बैक इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें, अगर आपको नॉर्मल फीवर भी है, अगर डॉक्टर ने आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है, तो वो ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ ये कोर्स फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। वो आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड भी बातें बोलता है कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना, आपको सॉल्ट वाटर से गार्गल करना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप मेडिकेशन ले भी रहे हो तो भी अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपेंड इन शार्क टैंक। रेस्ट पूरा एपिसोड बहुत अच्छा था। इवन एपिसोड के बाद वन ऑफ द शार्क, शेली इन्वाइटेड मी टू हर ऑफिस एंड सेड दैट यू गाइज वर एक्चुअली राइट। हमने शार्क टैंक पे नहीं बोल पाई बिकॉज द एपिसोड वॉज शॉर्ट एंड उस टाइम पे समझ नहीं आया ज़्यादा, बट आफ्टर आई केम बैक टू माई ऑफिस मैंने सोचा तुम लोगों के बारे में काफ़ी, तो मुझे समझ में आया यार यू गाइज आर डूइंग रियली नाइस। सो दैट इज हाउ शी इन्वाइटेड मी अस टू हर ऑफिस एंड टोल्ड अस दैट थिंग। So you got an offer later on? Yes, we got an offer later on। और इसके साथ साथ क्या होता है कि यार देखो, शार्क टैंक का एपिसोड हमारा 1.5 आवर का था, बट टेलीकास्ट होता है सिर्फ 10 मिनट का। तो लोगों को लगता है कि यार 10 मिनट का ये क्रक्स है, दिस इज द रियल फाइनल सिनेरियो, बट वहाँ पे जो रियलिटी में होता है वो कभी दिखाया ही नहीं जाता। 1.5 घंटे के एपिसोड को अगर आप सिर्फ 10 मिनट में क्रॉप कर दोगे तो उसका क्या ही पता लगेगा लोगों को। सो लोगों को लगता है ये तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड था। तो ऐसा कुछ रिकॉर्डेड वर्जन नहीं होता, इट्स अ रियल कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंस विद द शार्क, बट दिखाया जो जाता है वो बहुत शॉर्ट स्निपेट्स दिखाए जाते हैं सिर्फ। So the controversy only happened with Namita, as I understand, because I watched that episode. No other shark invested in your brand. So do you think you could have pitched your brand better, or
because what I saw was that the chart didn't believe that you are solely, truly invested in PCOS and PCOD. So how, what do you think could have been better? देखो ना यार, एक पर्सपेक्टिव है लोगों का शार्क टैंक को लेके. लोगों को लगता है कि अगर शार्क टैंक में किसी को ऑफर मिला है, किसी को डील मिली है, दैट स्टार्टअप इज अ रॉक सॉलिड स्टार्टअप. जिनको डील नहीं मिली, जिनको शार्क्स ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो स्टार्टअप थोड़ा सा मीडियोकर स्टार्टअप है, ज्यादा बढ़िया नहीं कर रहा. बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आप समझो कि अगर कोई शार्क है, वहां पे पहली चीज तो हर शार्क को अपनी येस या नो का आंसर देना होता है. तो अगर कोई शार्क इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको नो तो बोलना पड़ेगा, और नो बोलने के लिए कुछ तो रीजन देना पड़ेगा. अब जैसे मैं आपको एक रीजन बताऊं, अनुपम ने हमें क्या रीजन दिया. अनुपम ने बोला कि यार आपके प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने डाइटिशियन की स्पेलिंग पढ़ी, जिसमें DIETICIEN लिखा हुआ है, हमारे इसके अंदर TIEN लिखा हुआ था इंस्टेड ऑफ CIEN. तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे इसमें डाइटिशियन की स्पेलिंग गलत है. और उस टाइम पे हम भी स्टेज पे थे, हमने ध्यान दिया नहीं कि क्या गलत है क्या सही है. उन्होंने बोला तो दे आर बिग पीपल, तो हमें लगा कि हाँ सही बोल रहे होंगे. वी एक्सेप्टेड कि हाँ हो सकता है गलती हो गई होगी हमसे. तो उन्होंने कहा इसलिए आई एम आउट फ्रॉम यू. सो दैट वाज द रीजन कि आपने डाइटिशियन की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए आई एम आउट. तो रियल रीजन अंदर ये नहीं हो सकता कि डाइटिशियन की स्पेलिंग गलत है इसलिए ही इज आउट. बट रियल रीजन ये भी हो सकता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री. बट लोगों को ये बात समझ नहीं आती. एंड बाय द वे दैट डाइटिशियन स्पेलिंग भी वो सही थी, तो उन्होंने वो डाला ही नहीं. क्योंकि अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो हमारे डाइटिशियन की स्पेलिंग में टी लिखा हो या सी लिखा हो, बोथ आर ब्रॉडली एक्सेप्टेबल. और टी वाली स्पेलिंग तो उल्टा ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है. दैट्स अगेन अ कंट्रोवर्सी थिंग जो हुई थी वहाँ पे. बट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी शार्क ने नो भी करा, दैट इज़ नॉट कि वो स्टार्टअप अच्छा नहीं है या स्टार्टअप वो रॉक सॉलिड नहीं है. वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है. हो सकता है वो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करना चाहते हो सकता है उन्होंने उस इंडस्ट्री में किसी और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा हो. सो दैट्स अ अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग फॉर देम एज वेल. तो ये भी रीजंस हो सकते हैं. So what happened after Shark Tank? I understand that you got an offer from Shelly, but how did that help amplify your brand? तो देखो यार, शार्क टैंक में जाने के बाद हमारा ब्रांड को भले ही शार्क ने प्यार दिया हो ना दिया हो, बट इंडिया की वुमेन ने तो बहुत प्यार दिया. हमारा विद इन 1 month 1 लाख इंस्टॉल्स आए. 1 लाख लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करा. उन्होंने हमारी कम्युनिटी यूज करी. हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स आए, हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस आए. वी लव द ब्रांड, वी लव द प्लेटफॉर्म, वी लव द कम्युनिटी दैट यू हैव क्रिएटेड. तो वो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट था हमारा शार्क टैंक में आने के बाद, कि भले ही शार्क्स ने डील नहीं दी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट लोगों ने प्यार दे दिया ना. दैट्स गुड इनफ फॉर अस. सेकेंड चीज, क्योंकि हम लोगों ने जब यूज करा एज सीन ऑन शार्क टैंक, तो ऑब्वियसली बात है एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है. कि अगर आप कोई भी चीज, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, एक प्रोडक्ट ने लिखा हुआ है या एक सर्विस ने लिखा हुआ है सीन ऑन शार्क टैंक, दूसरे ने नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली विल सी कि यार जो शार्क टैंक में गया है, यू कैन ट्रस्ट मोर ऑन दैट ब्रांड. क्योंकि हम जब शार्क टैंक में भी जाते हैं तो उससे पहले वो बहुत बड़ी हमारे 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, 5 लेयर्स ऑफ चेकिंग होती है कि हम प्लेटफॉर्म के अंदर कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. उसके बाद ही हम सिर्फ शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म, शार्क टैंक के स्टेज के ऊपर जाके पिच कर सकते हैं. उससे पहले हम पिच भी नहीं कर सकते. Let's talk about how much do you, if I have to enroll into your platform, how much do I have to pay? What is your enrollment fee? How does that function? If I have to take a long-term plan versus a short-term plan, how does that look like? So basically देखो, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर if you are downloading the application, obviously it's free of cost. If you want to use the community where we are having various tools to track your menstrual cycles, log in your symptoms, check a PCOS assessment test, take a help from the AI model with the name Eva. So what Eva does in the platform is, it once you have logged in your symptoms, it tells you exactly that why the symptoms actually happening to you. Because once you'll be knowing that why the symptoms actually happening to you, you'll be in a better position to understand and take a help out of it कि मुझे अब next करना क्या है. So all these features are free of cost. We do not charge any money to use these kind of features. But once you know that you are having PCOD or PCOS and now you need a dedicated support from the team, you need a personalized health coach, you need a personalized dietitian for your support, that is when we charge money from the users. So usually we charge 5,000 rupees for 3 months plan. That's a 90 days program that includes each and every bit of the platform. That includes dedicated health coach, dedicated dietitians. 5 days it's different workouts. After every workout you get an auto generative report as well, that how much calories you have burned. All the reports are being shared to the dietitians, all the reports are being shared to you, all the reports are being shared to the health coaches as well. So that health coaches and dietitian will be having a full frame of your journey in terms of fitness, that how much workout you have done, how much food in terms of macro and micro calories you have consumed, what's happening in your cycle, what's happening with your symptoms. So that's how the platform usually works. So that is the only plan that you offer? Is there a long term? The minimum plan is for 3 months.
months, and the maximum plan is for 12 months. And what is the cost of that? For 12 months plans, we charge 15,000 rupees. 15,000 rupees for a year. And what is the retention rate look like? So in terms of retention, in terms of fitness industry or in terms of health industry, retention usually happens in cohorts. So क्या होता है, it's आपने प्लान ज्वाइन करा या किसी भी यूजर ने प्लान ज्वाइन करा, उसने 3 महीने 6 महीने जब प्लान लिया ना, उनको अपनी बॉडी में सडन चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं. और जब चेंजेस दिखना शुरू होते हैं ना, अगर आपका 5 kgs वेट लॉस हो गया, आपकी स्किन सडनली बेटर थोड़ी सी फील हो रही है, तो आपको लगेगा यार आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. और जिस मोमेंट आपको सेटिस्फैक्शन हो जाती है ना अपनी बॉडी के साथ कि यार आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आप थोड़ा सा ना बैक सीट पे आ जाते हो कि नाउ आई शुड टेक अ ब्रेक. और या तो आप ब्रेक उस फॉर्म में सोचते हो कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, या आपको ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नाउ आई कैन डू इट माई सेल्फ एज वेल. तो वहाँ पे यूजर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, एनरोल नहीं करते. दैट इज वाई वी ट्रैक द रिटेंशन इन टर्म्स ऑफ कोहोर्ट्स. तो हमारा जो 6 months का कोहोर्ट है कि अगर आपका प्लान आज एक्सपायर हुआ, आने वाले 6 महीने के अंदर आप दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, वी ट्रैक दैट पार्ट. और 40% इज द रिटेंशन रेट कि अगर आपका प्लान आज एक्सपायर हुआ है, आने वाले 6 महीने में आप हमारा प्लान दोबारा से रीजॉइन करोगे. So, how many are your active users currently? So in terms of active users, we are having 1,75,000 active users into the system. Okay, and per month basis, if how many last month per se, how many users have joined you? So देखो, 2 टाइप के यूज़र हैं हमारे पास. एक तो एक्टिव यूजर्स वो हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, टू ट्रैक देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, टू ट्रैक द वेरियस अदर सिम्टम्स एज वेल. और दूसरे टाइप के यूजर बेस हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे हैव पेड मनी टू अस. दे आर ऑल्सो टेकिंग वर्कआउट क्लासेज ऑन द सिस्टम, दे आर ऑल्सो टेकिंग डाइट प्लान इन द सिस्टम, दे आर ऑल्सो यूजिंग आर AI ट्रैकर टूल एज वेल. तो इन टर्म्स ऑफ paid users, we usually acquire 1,400 to 1,500 users every month, and in terms of active users, it's 1,75,000. Okay. Women from all across India enroll into your platform. So, have you come across any medical term that blew your mind? Okay, something like this also exists. Any interesting story that you can share with us? तो मैं ना एग्जैक्ट आपके जो आपने पूछा ना उससे लिंक एक आंसर देना चाहूँगा कि हमारे यूजुअली क्लाइंट्स क्या बोलते हैं हमें, और हमारे क्लाइंट्स जो परचेज नहीं भी करते वो भी क्या बोलते हैं. तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डीप दैट प्रॉब्लम इज एक्चुअली. तो हम एक क्लाइंट को, जब क्लाइंट कोई भी फॉर्म फिल करता है हमारा या कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, तो वी डू अ कंसल्टेशन कॉल विद देम. तो जब हमने एक क्लाइंट, एक वुमेन के साथ हमारे हेल्थ कोच ने कंसल्टेशन कॉल करी, तो हेल्थ कोच ने उनसे पूछा कि व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग. यू विल नॉट इमेजिन व्हाट वुमेन सेड. शी वाज फ्रॉम उड़ीसा. शी सेड कि मैंने अपने 6 महीने पहले अपने हाथ के कंगन सेल करे ताकि मैं पैसा पे कर पाऊँ टू अनदर प्लेटफॉर्म. में उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी सब्सक्रिप्शन अराउंड 25,000 रुपीज़ की है. मैंने उनको 25,000 रुपीज़ के पैसे पे करे अपने हाथ के कंगन बेच के, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि मैं ओवरवेट होती जा रही हूँ. और वो 25,000 पे जब मैंने पे करे, उन्होंने मुझे टैबलेट्स भेजी, वो टैबलेट्स मैंने खाई, मेरा वेट लॉस भी हुआ 3 महीने में. जिस मूवमेंट मैंने वो टैबलेट छोड़ी, विद इन 1.5 month मेरा जितना पहले वेट था उससे भी ज़्यादा वेट गेन हो गया है. So can you help me now? This is the kind of a scenarios that come to us. This is the kind of deep-rooted problem what women is facing right now in these days. तो हमने उनको समझाया कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ मेडिकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन. मेडिकेशन कैन सप्रेस द सिम्टम्स, यू हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज. फिर हमने उनको अपने प्लेटफॉर्म में एनरोल करा, हमने उनके रूट कॉज को समझा, उसके बाद हमने उनको प्रोग्राम में एनरोल करके उनकी हेल्प करी, और 6 महीने के बाद शी लूज लॉट ऑफ वेट. ऑल्दो जितना वेट उनका उस 3 महीने में मेडिकेशन खा के हुआ था, उससे कम वेट लॉस हुआ 6 महीने में. स्टिल शी वाज हैप्पी क्योंकि उसके बाद उनका वेट गेन वापस नहीं हुआ. शी वाज एबल टू मेंटेन दैट, क्योंकि हमने सिर्फ वेट लॉस नहीं करवाया, हमने उनकी लाइफस्टाइल चेंज करी और उनको एक अच्छी हैबिट में डाला, जहाँ पे उन्होंने रेगुलर वर्कआउट करा. रेगुलर वर्कआउट करके उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर मसल मास को इंक्रीज करा, और जब मसल मास बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर. जब वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सब इश्यूज कम हो जाएंगे जो रिपरकशंस आते हैं PCOS के. So what kind of workout or diet plan do you suggest to women who are dealing with PCOS or PCOD? तो देखो यार, ऐसा कुछ फिक्स एजेंडा नहीं है कि हम यही डाइट प्लान फॉलो करते हैं, हम यही डाइट प्लान उनको देते हैं. इट्स 100% कस्टमाइजेबल. हमारा पहले टारगेट ये होता है कि हम उसकी जर्नी को समझें कि वो यूजुअली खाती क्या है, और उसमें हम छोटे छोटे चेंजेस यूज करें. क्योंकि अगर हम सीधा बड़ा चेंज कर देंगे ना, तो पहले दिन तो बहुत परफेक्ट साउंड करेगा कि यार सुपर्ब, आई हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर, बट 2 दिन 3 दिन फॉलो करने के बाद स्टिल ब्रेक डाउन. और दैट ब्रेक डाउन इज इवन वर्स देन लूजिंग वेट एट अ स्लोअर स्केल.
फील। तो हम चाहते हैं कि भले ही वेट लूज हमारा धीरे धीरे हो, भले ही हमारे इश्यूज रिजॉल्व धीरे धीरे हो, बट चेंजेस हम सडन ना करें बॉडी के अंदर। तो और अगर मैं वर्कआउट्स की बात करूं तो वर्कआउट्स में हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोकस करना है आपकी मसल मास को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जिस मोमेंट आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी शुगर को अच्छे से प्रोसेस कर पाएगी, आपको शुगर क्रेविंग्स कम होंगी, और आपकी बॉडी अच्छे से आगे जाके वेट लॉस भी कर पाएगी और उसको मैनेज भी कर पाएगी। So, my next question is, there are tier 2 cities, there are tier 3 cities जहाँ पे फ़ोन भी लोगों के हाथ में नहीं है. So, how do you make sure that your app reaches remote areas? देखो यार, अगर फ़ोन भी हाथ में नहीं है तो अभी तो हम ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से जियो आया है इंडिया के अंदर, तब से पेनिट्रेशन बहुत हाई लेवल की हो गई है। यू नॉट इमेजिन, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं पंजाब के संगरूर एरिया से, हमारे पास क्लाइंट, जैसे मैंने बताया, द क्लाइंट वाज फ्रॉम उड़ीसा, हमारे पास क्लाइंट आते हैं झारखंड एरिया से। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज से भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऑलरेडी आते हैं। अगर वो प्रीमियम प्रोग्राम परचेज नहीं भी कर पाते तो भी वी हेल्प देम आउट विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो टूल्स मैंने आपको बताया, पीरियड ट्रैकर टूल हो, चाहे लॉगिन सिम्टम्स लॉगिंग टूल हो, चाहे वो एआई टूल हो, इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे रीडेबल कंटेंट भी है। रीडेबल कंटेंट की आपको किस टाइप की डाइट फॉलो करनी चाहिए, आपकी बॉडी में अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो वो लोग बिना पैसा दिए भी वो सब स्टडीज को पढ़ के भी अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट, अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं इफ दे आर विलिंग टू डू दैट। तो उस तरीके से भी हम उनकी मदद करते हैं if they are not able to pay money to us. And what are your future plans with HopFit? So अभी हम सिर्फ डील करते हैं PCOD पीसेस वुमेन के लिए, बट आवर मेन गोल फॉर आवर प्लेटफॉर्म इज टू बिल्ड अ वन प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम जहाँ पे वुमेन को कोई भी इशू हो, चाहे वो PCOD पीसेस हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पेरीमेनोपॉज इशू हो, उन सबको हम केटर करेंगे फ्रॉम डायग्नोस्टिक टू रिजॉल्विंग टू अंडरस्टैंडिंग इट एंड टू सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ द सप्लीमेंट रेंजेस और with the help of our service part as well. We are now launching a new brand with the name Not Your Fault, especially for women who are dealing with PCOD and PCOS. And what comes under that brand? So उसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट रेंजेस आ रहे हैं। अभी वी आर डूइंग रिसर्च, तो अभी वो प्रोडक्ट्स को मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पर, बट दैट विल बी लाइव इन नेक्स्ट 45 days. And since you are a startup, do you think startups in India nowadays have the potential to eat into bigger brands? एब्सोल्युटली। अभी इंडिया के अंदर ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आप कोई भी ब्रांड को उठा के देखो, जो ब्रांड पिछले 100 साल से चल रहा है, अभी उसमें भी डिसरप्शंस हो रही हैं, क्योंकि हमारे पहले लोग कुछ भी नया यूज करने से पहले डरते थे, बट दिस टाइम जो जेनजी आ गया है वो अब हमेशा नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रही है। पहले अगर हम कहते थे कि टीथ क्लीनिंग करने, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ब्रांड आता था, कॉलगेट। अब अगर आप यंग जनरेशन से पूछोगे कि आपको कौन सी पेस्ट यूज करनी है, दिल से परफोरा, दिल से न्यूअर ब्रांड्स, इवन वो एक कैटेगरी जहाँ पे लोग टीथ क्लीनिंग को जानते ही सिर्फ कोलगेट के नाम से थे, वहाँ पे भी इवन लोग नए नए ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, नए नए डिसरप्शंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जेनजी जो है वो नए ब्रांड्स की तरफ मूव ऑन कर रही है, इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द ओल्डर ब्रांड्स जो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते थे। सो स्टार्टअप्स हैव अ full blown potential to scale in this in any industry right now in India. But just a follow-up question on that, since you mentioned कि Gen Zs want to try new things every now and then, so what if tomorrow an app comes that can overpower your brand, then they'll jump into some other thing? देखो, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, बट बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमने इकोसिस्टम बनाया है। अगर यूजर का डेटाबेस हमारे पास है कि उसने पिछले 1 साल की जर्नी में उसकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके जितने भी कंसल्टेशन कॉल है, चाहे वो गायनेक से हो, चाहे वो हेल्थ कोचेस से हो, उनका क्रक्स उनके पास है उसी सिस्टम के अंदर। तो अगर वो कोई भी नए ब्रांड के पास जाते हैं तो उनको पूरा का पूरा अपना डेटाबेस छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी बॉडी का डेटाबेस छोड़ना पड़ जाए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्योंकि वो डेटाबेस आपका उस टाइम से शुरू होगा, ओल्डर डेटाबेस आपका वहां छूट जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूअर ब्रांड्स टू कम एंड इंटरप्ट अस, डिसरप्ट अस। Alright. Last is our rapid fire round. PCOS, reversible or manageable? So it's manageable in most of the cases. In some cases, it's reversible as well. Diet or workout? What matters more? Both of them are equally important. So it's, if anyone is doing both of them, it's 1 + 1 11. If anyone is doing just one thing, it's just one. AI coach or human coach? If AI is being used by a human and then the results are being given to the user, then it's more beneficial. If AI is directly used by the client, then sometimes it can create a impact that is not really helpful for the users. Subscription fatigue, real problem or excuse? I think excuse. Yeah, why?
बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उसको करना नहीं चाहते या लेना नहीं चाहते, बस ये है कि एक बार लोगों को कुछ बेनिफिट दिख जाता है ना, तो लोग थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो एनरोल. One myth about women's fitness you want to kill forever. आप सिर्फ कम खाना खाओ और आपका वेट लॉस हो जाएगा. Okay, with that's a wrap. Thank you so much for joining us on this podcast. It was a very insightful conversation. I'm so glad we did this. Thank you so much. Thank you so much.